Class 7th, R.S. Agarwal. Exercise, chapter triangles, chapter 7 triangles and their construction. Exercise 7F. Assertion and reason. सबसे पहले first assertion. It is impossible to construct a triangle with side lengths 50 meter, 100 meter and 125 meter. 100 plus 50, 150 greater than this, 100 plus 125 greater than this and 50 plus 125 greater than this. तो it is not impossible. तो ये line false हो गया. Assertion and reason पहले false true करके करते हैं. The sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. True. ये चीज़ इसको एक्सप्लेन करता है. तो assertion is true and reason is assertion and reason are true and reason is the explanation of assertion. So हो गया इसका A. Then we can construct a triangle PQR if PQ, angle P and R are given. अगर PQ दिया हुआ है, PQ हम लोग जो देख रहे हैं, PQ दिया हुआ है, एंगल P दिया हुआ है, एंगल P ऐसे कर लेते हैं और एक्सटेंड कर लेंगे. एंगल R दिया हुआ है, वी नो सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल P और R को ऐड कर लेंगे तो उसको 180 से माइनस कर लेंगे तो एंगल Q का मेजरमेंट आ जाएगा. उसी से एंगल Q बना के इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो एंगल R अपने आप यहाँ पे बन जाएगा. तो इट इज़ पॉसिबल. ट्रू. We can construct a triangle if two angles on the included side are given. In the included side are given. We can construct a triangle if two angles on the included side are given. Included side दिया हुआ तो नहीं कर सकते, तो false. Assertion is true but reason is false, तो C. We can draw a unique triangle if the measures of all three angles are given. We can draw a unique triangle if measures of all three angles are given. Measure तो कर सकता अगर all three angles are given. To draw a unique triangle we need we can draw a unique triangle if the measures of all three angles are given. Three angles तो दिया हुआ है लेकिन एक साइड तो हम लोग को चाहिए ना कि बेस तो एटलीस्ट बना सके, वरना तो फिर गलत हो जाएगा. तो ये फॉल्स हो जाएगा. To draw a unique triangle we need to know the length of at least one of its sides. तो true. Assertion is false but reason is true. Option D. A triangle can have at the most one right angle. A triangle at least can have one right angle. So true. The sum of the angles of a triangle is 180 degree. True. Assertion is true and reason is also true, and reason is the correct explanation of assertion. So A. A scalar triangle has all angles of different measures. True. A scalar triangle is always acute angle. नहीं, हम लोग जैसे अगर 110 डिग्री ले लेते हैं, 90 डिग्री से ऊपर है तो acute angle नहीं है. और 110 डिग्री एक 30 डिग्री ले लेते हैं और एक 30 140 और एक 20 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं. 110 30 40 इनको ऐड करेंगे तो 180 आएगा. तो स्केलर ट्रायंगल है तो ये फॉल्स है. इज़ नॉट ऑलवेज अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं. एक्चुअली अक्यूट एंगल भी नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं. तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है. सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन सी. If two angles of a triangle are equal and the measure of the third angle is twice the measure of each of the equal angle, then the triangle is right angle. टू एंगल्स का मेजर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 45 डिग्री, तो अगर उसका ट्वाइस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा. देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल. तो ट्रू. इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. एक ट्रायंगल है, ये प्रोड्यूस हो गया है, तो उसका यहाँ का जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल, ये सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होगा, इन दोनों का सम होगा. तो ये चीज़ तो ट्रू है क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है. तो ट्रू. Assertion is true and reason is true, but it is not the correct explanation. Reason is not the correct explanation of assertion. So option B. A mathematics teacher conducted a test in a group of 5 students: Sneha, Riya, Tanya, Aman, and Kunal. Below are given the questions asked by her and the replies given by the students.
अगेंस्ट ईच रिप्लाई गिव योर ओपिनियन एज टू वेदर द रिप्लाई गिवन बाई ईच स्टूडेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. Sneha, the measure of two angles of a triangle are 75 degree and 30 degree. What type of a triangle is it? We know sum of a triangle is equal to 180 degree. 75 degree plus 30 degree is equal to अगर जो भी आता है आंसर 75 प्लस 30 डिग्री माइनस करेंगे 180 डिग्री तो आंसर आएगा 75 डिग्री. तो नहीं 75 डिग्री दिया हुआ 75 डिग्री है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलेटल ट्रायंगल नहीं होगा. तो इनकरेक्ट. Incorrect. The side lengths of a triangle are 12.5 cm, 25 cm, 37.5 cm. Does the triangle exist? 12.5 cm plus 25 cm is equal to 37.5 cm. तो हम लोग का आंसर the sum of two sides should be greater than the third side, not equal to or less than. तो ये भी नहीं होगा. No, तो इसका आंसर करेक्ट है. इसने आंसर रिप्लाई नो दिया है. इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी ए सी इज इक्वल टू 85 डिग्री. इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द गिवन डेटा. रुको, अब हम लोग करेंगे. ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. हमको नहीं पता, हम तो एक्सटेंड कर रहे हैं. अभी सी मार्क नहीं करेंगे. और एंगल ए का मेजरमेंट दिया हुआ है 85 डिग्री. ऐसे मान लेते हैं 85 डिग्री. तो ये इधर से जाएगा. सॉरी, तो हमको ये अभी नहीं करना है एक्चुअली. पहले करेंगे हम लोग ए बी ड्रॉ करेंगे, फिर एंगल ए का डिग्री निकाल लेंगे. उसके बाद जो एंगल एक एक्सटेंड कर देंगे लाइन. उसके बाद एंगल सी का था, मतलब बी सी लाइन था 8 सेंटीमीटर का. तो अब इधर से 8 सेंटीमीटर का आर्क काट देंगे कंपास से और ज्वाइन कर देंगे. तो हाँ, ट्रायंगल तो पॉसिबल है. तो इट इज़, यहाँ पे इसका रिप्लाई है यस. तो ये करेक्ट हो जाएगा. अमन, इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज द एल्टीट्यूड ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल. हाँ, 90 डिग्री के ट्रायंगल में एल्टीट्यूड पॉसिबल है. तो करेक्ट. The two sides of a triangle measures 2 centimeter and 3 centimeter. Then how many possible integral values are there for the length of the third side? इसका रिप्लाई है 4. Let's see. Difference of the sum हम लिखेंगे नहीं. Difference of the sum था 3 minus 2 1. Then third side x ले लेंगे और sum of the sum 5. अब इसके बीच में जितने नंबर आते हैं वो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ है. 2 3 4. ये तो 3 नंबर्स है और यहाँ पे 4 नंबर्स लिखा है, तो ये इनकरेक्ट है. अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.